हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पे न्यूज़ अलर्ट 8 पे एक नया टॉपिक के साथ आए हैं और हमारे साथ कर्नल आरपी नैन है जो एक वेटरन ऑफिसर हैं। और हम आज एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे दो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे लोगों ने स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसमें से हैं मिस्टर उदयनिधि स्टालियन एंड मिस्टर प्रियांक खरगे। और इन लोगों ने जो स्टेटमेंट दी है इसके अगेंस्ट हमारे पास एक मेल आई थी, जिसमें हमारे पास एक लेटर आया है जो वो चाहते थे कि हम पढ़ें ऑनलाइन और बाकी लोगों को बताएं कि वो लोग क्या सोचते हैं इनकी स्टेटमेंट के बारे में। और इसमें बहुत लोगों के अंदर गुस्सा है, जो ये लोग सोच रहे हैं कि ये स्टेटमेंट कैसे, ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस एंड बड़े बड़े लोग कैसे स्टेटमेंट दे देते हैं बिना सोचे समझे। उन लोगों कैसी कैसी बातें करते हैं, ये सही नहीं है। ऐसे विचारों के साथ उनके लेटर्स आ रहे हैं मेरे पास, जिसमें से एक लेटर हम लोगों ने चूज़ किया है जो पढ़ना चाहेंगे, और हम ताकि उन लोगों को पता चले कि वो कितने गुस्से में हैं। तो ये लेटर के बारे में मैं अब पढ़ता हूँ और आप सुनिए ये कैसे लेटर जाता है। उदय निधि स्टालियन, यू टॉक अबाउट आर सनातन। फॉर यू सनातन विल बिकम Satan and punish all your kind. In our country, people like you make statements and create religious havoc in society just to achieve cheap popularity. You may be an actor, producer, or a politician. Out of your own life, you can do anything but not say wrong things about Sanatan Dharam. You are full of trash and you make me sick. I have never seen any movie of yours and never will because you and your mindset is not good. The whole Sanatan demolition conference held by you and your associate is just trash, people talking trash. Now he wants to give also a message to Priyank Kharge, that he further says, a friend of Udayanidhi Stallion who talks about Sanatan Dharam being a disease. His thoughts make me feel sick as well. He talks so ill about our religion and hurt the sentiments of millions and billions of people who love and care about Sanatan Dharam. You are the one to talk so lightly. You will be punished by Satan himself too. Think like nothing will happen is a fairy tale of non-believers of karma. So wrong you are, Mr. Priyank Kharge. You also talk about inequality in Sanatan Dharam. Look around others and look around yourself in other aspects of inequality in our country and the whole world. Don't blame Sanatan Dharam for all of this. Our Sanatan Dharam teaches us love, care, and respect. That was the message from one of the viewers, and he wanted to bring it out loud. So we gave him a platform to speak about it. We will also talk to Colonel Apin N, the veteran officer we have here. He will tell us how he feels about the controversy that is taking place these days about Sanatan Dharma and any Dharma in that form, how they talk. So, is it right to talk like how they are speaking and telling people that Sanatan Dharma is trash for any reason, either whether it be political or whether it be any other personal reason, thinking that telling their opinion in a right form is right, or telling any opinion they feel is right? Because opinion can be right, but anything they feel is right is not always right, is what I'm trying to say. So this is what I wanted to ask you. If you can tell me further, it will be very nice. Thank you, sir. For the convenience of viewers, may I give my comments in Hindi? Yes, please. Yes, please. Thank you very much. ये जो आपके व्यूअर्स का आपने ईमेल पढ़ के हमें सुनाया है, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर साहिब का बेटा है उदयनिधि, और कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का बेटा है प्रियंक खरगे। इन दोनों के व्यूज जो आज पूरे देश में मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह चर्चित हैं,
जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इन्होंने सनातन धर्म के बारे में दी है, उसके ऊपर हजारों मिलियंस और लैक्स ऑफ पीपल का, करोड्स ऑफ पीपल्स का जो रिएक्शन आया है, जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, उनमें से ये किसी एक का है और ये बिल्कुल सही है। ये रोष जो जताया गया है, बिल्कुल इसके लिए हम सहमत हैं। किसी के धर्म के बारे में, किसी के मजहब के बारे में, किसी के पंथ के बारे में इस तरह के विचार रखना ये बहुत ही डेंजरस है, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही डेंजरस है। हमारे देश में लगभग 80% या बोलो मैक्सिमम जो हमारी सोसाइटी है वो सनातन धर्म को मानने वाली है और ऐसी स्टेटमेंट से हमारे देश के सभी लोगों के ये सेंटीमेंट्स को हर्ट होता है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। ये शायद हो सकता है उनका पॉलिटिकल स्टंट हो, लेकिन इससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। रादर हमारी सोसाइटी में एक रोष पैदा करने वाला और डिवीजन पैदा करने वाला और एक नुकसान करने वाला विचार है। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। देश में इतने बड़े हमारा देश है, सनातन धर्म है और उसमें इस तरह के विचार रखने वाले हमारे नेता हैं, तो ये सोसाइटी के लिए एक बहुत खराब बात है। जैसा कि हम जानते हैं, सनातन धर्म ये तो एक बहुत प्यार का धर्म है, एक सभ्यता का धर्म है जो हजारों लाखों सालों से चलता आ रहा है। नेचर की पूजा में विश्वास रखते हैं और जो जैसा है यूं का त्यों, जिसके जैसे भी कल्चर है, जैसा भी उसका रहन सहन का तरीका है, उसका पूजा करने की प्रक्रिया है, ये सब सनातन धर्म का हिस्सा है। सनातन धर्म किसी को नुकसान करने वाला या किसी को फोर्स के करके कन्वर्ट करने वाला या किसी को दूसरे मत को मानने के लिए मना करने वाला धर्म नहीं है। जो जैसा है यूं का त्यों, जितना मैं समझता हूं, थोड़ा ज्ञान है, वो उसी में विश्वास रखता है। जैसे कि अगर समझो हमारे ट्राइब्स लोग हैं, उनके अपने रीति रिवाज हैं, उनका अपनी सभ्यता है, उनका अपना कल्चर है, वो अपनी सभ्यता में, अपने रीति रिवाज में, अपनी जीने की जो उनकी शैली है, वो हजारों लाखों सालों से जीते आ रहे हैं। अगर उनको आज हम उनकी सभ्यता के ऊपर आक्रमण करके उनको बोलें कि आप दूसरी सभ्यता को अपनाओ, उसको तौर तरीके बदलो, तो ये गलत बात है। तो सनातन धर्म इस चीज में विश्वास नहीं रखता। सनातन धर्म बहुत प्यार का, बहुत बराबरी का, सबको साथ ले जाने का, और आप किसी भी धर्म में विश्वास रखो, किसी भी गॉड को मानो, किसी भी प्रणाली में विश्वास रखो, सनातन धर्म इसमें कभी इंटरफेयर नहीं करता। बल्कि कुछ और मतों के लोग इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सनातन धर्म तो महान है, हमें अपने सनातन धर्म पे गर्व है, हमें अपनी संस्कृति पे, अपने विचारों पे, अपनी सभ्यता पे पूरा मान है और इसको कोई भी पॉलिटिकल कारण से या किसी और कारण से कोई नेता या वोट लेने की राजनीति से इसको डिस्टर्ब ना करें और देश के अंदर इतना डिवीजन और इतनी विचारों में मतभेद ना लाएं। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है और ये नुकसानदायक है, इससे बचना चाहिए। और जितने भी इतने हमारे करोड़ों सनातनी लोगों के जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, उसको जो इस तरह के विचारों से तकलीफ होती है, उससे इनको ऐसी स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि ये एजेंडा है या ये स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, इसमें मोस्टली पॉलिटिकल लीडर्स जो साउथ से हैं उनने पार्टिसिपेट किया है या फिर नॉर्थ में भी लोग, क्योंकि नॉर्थ में तो इसका काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में फाइल गई हैं, बाकी रीजन से भी यहाँ पे पॉलिटिकली
इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि ये कैसे स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, और पुलिस कंप्लेंट्स भी हुई है, दिल्ली में भी पुलिस कंप्लेंट फाइल हुई है इस मैटर के खिलाफ। बाकी जैसे द्राविड्स के बारे में ये लोग बात करते हैं, साउथ इंडियंस के बारे में बात करते हैं, और इस कल्चर को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरह। हमारे एक ही धर्म से अलग करने का कोई एजेंडा है जो आप सोच सकें? आप हमें थोड़ा इनलाइट कर सकें या जी जी जी, ये जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे देश में ये खेल खेल चुके हैं, अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, ये अभी जो देश में हालात हैं, एक रूलिंग पार्टी है जो दूसरी INDIA के नाम से, इंडिया के नाम से एक सामूहिक संगठन बनाया है, पॉलिटिकल संगठन, जिसमें काफ़ी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं। मेरे ख्याल से 26-27 पार्टियां हैं। ये सारे मिलकर के इन्होंने एक अपना मंच बनाया है, पॉलिटिकल मंच, और इसमें सारे देश की पार्टियां हैं, हर स्टेट की पार्टियां हैं, साउथ की भी हैं, नॉर्थ ईस्ट की भी हैं, बंगाल तक, और अपने सारे देश के हिस्सों में से ये पार्टियों इकट्ठी, छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर संगठन बनाया है। तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल मुद्दा है। इसमें साउथ और नॉर्थ का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल विचारधारा है, और ये अपने आप को ऊपर, अपने विचारों को ऊपर दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट अच्छी नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट देना खतरनाक है, बल्कि ये ऐसी स्टेटमेंट बैकफायर करती हैं। अच्छा होने की बजाय इसमें बुरा ही होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा एक बात है, लेकिन लोगों की, सिविल सोसाइटी की भावना भी तो एक होती है। जहां पे करोड़ों लोग एक धर्म में, एक मत में विश्वास रखते हैं, उसको अगर आप हर्ट करोगे तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। तो और जैसे कि ये FIR हुई है, जैसे बोल रहे थे दिल्ली में FIR हुई है, आपको लगता है कि इतने बड़े ऑफिशियल हैं, इतनी बड़ी स्टेटस के साथ हैं, उनने कमेंट भी किया है और स्टेटमेंट्स भी डाली हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, वो अपनी स्टेटमेंट नहीं बदलेंगे, तो क्या आपको लगता है इस पे कोई एक्शन होगा, या फिर आगे क्या हो सकता है, या उनके ऊपर किस बात का उनको डर नहीं लग रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट करने में इतनी आसानी से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ओपनली दे रहे हैं? कोई नीचे ऑफिशियल बात कर रहे हो, नॉर्मल ऑफिशियल्स बात कर रहे हो तो समझ भी आता है, बट इतने हाई रैंकिंग ऑफिशियल हैं, एक पूरी यूथ को भी प्रोनाउन करने के लिए उनको तमिल में भी माना जाता है, साउथ में उनको काफ़ी लोग मानते हैं, यूथ पूरा बहुत मानता है, तो उसके बाद भी वो इतनी ऐसी स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो एक वो अच्छा एग्जाम्पल तो सेट नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आप देखेंगे सनातन धर्म या सनातन हिंदू धर्म के बारे में कोई भी कभी भी कैसी स्टेटमेंट देता है, और उसके ऊपर सब लोग चैन से बैठे रहते हैं, किसी का, सनातनी का कोई रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम शांति में, कोएग्जिस्टेंस में, भाईचारे में विश्वास रखते हैं। लेकिन यही बात अगर आपको पीछे हुई थी, एक लेडी ने, हमारे देश की एक पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन ने कुछ स्टेटमेंट दिया था एक पार्टिकुलर धर्म के बारे में, तो उसके पीछे उसकी गर्दन सिर से जुदा करने के लिए कितने लोग पीछे पड़ गए थे, और यहां तक कि आज भी वो कहीं भी पब्लिक प्लेस में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो घर में कैद होकर के बैठी हुई है। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये सही नहीं है। दूसरे धर्म के लोगों की भावना को भी समझना चाहिए। एक पॉलिटिकल गेन के लिए और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ऐसी ऐसी स्टेटमेंट हमारी समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सिविल सोसाइटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इससे बिल्कुल बचना चाहिए। इसको एक तरफ से एक ये समझना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है देश का, और ये देश के अंदर रोष है, और आगे ऐसे पॉलिटिकल गेन के लिए कोई स्टेटमेंट ना दे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
तो ये थे वेटरन ऑफिसर कर्नल आरपी नैन, जो हमारे साथ थे, जिनने अपने व्यूज़ हमारे साथ रखे, जो हम लोग को बहुत अच्छे लगे, हमारे व्यूज़ को भी ज़रूर बहुत अच्छे लगेंगे। और ये स्टेटमेंट पे भी बहुत कुछ बताया गया, तो होप इस पे लोगों को अवेयरनेस मिले और हमारे धर्म या और पूरे हिंदुस्तान के धर्मों, कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या कोई भी धर्म हो, उसके बारे में ऐसी कोई स्टेटमेंट ना भी की जाए, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना की जाए जिससे सोसाइटी में कोई अनबन हो और सोसाइटी में लोग बिल्कुल अनरेस्टेड फील करें और कोई भी खुश ना हो। इसके बारे में सारी पब्लिक इतनी नाराज़ रहती है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे डिज़ास्टर्स हैं आजकल आ रहे हैं, और उसकी वजह से इतना अनरेस्ट है। तो ये नई चीज़ें करके, नए नए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मेक करके, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करके, पैसा बर्बाद करके इन चीज़ों में लोगों की मदद की जाए। यही इस एपिसोड के बारे में ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। और यही था मेरा आज का एपिसोड, और इसके साथ हम लोग आपसे अलविदा मांगते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय